कुशाग्र बनर्जी, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है बे? चलिए। तो in the last class we discussed about an object moving in circular motion, and that object has we discussed about I introduced you to radial unit vector, tangential unit vector. These were the vectors which I introduced you to, right? And you got the chalo, this is the radial unit vector, this is the tangential unit vector, right? This angle is theta. So radial unit vector can be written as cos theta I cap plus sin theta j cap. ठीक है? तो and this was sin theta minus I cap plus cos theta j, है ना? Then we wrote r vector, the position vector of the particle. It was r cos theta I cap plus r sin theta j cap. ठीक? Then we discussed about velocity and it came out to be omega r e t cap. Thank you so much. ठीक है? Then came acceleration. Acceleration was ar vector plus at vector. Ar vector is given as in terms of omega, it was omega square r minus er cap plus r d omega by dt et cap. This is at vector, right? Or in terms of velocity vector, it is v square by r minus er cap plus dv by dt et cap. Okay. This is acceleration dv vector by dt. Dishita, can you tell me difference between dv vector by dt and dv by dt? Sir, dv by dt, we had got that as r uh, rd omega upon dt, but d vector by dt would be ये है क्या मतलब? What do we call this? This is the rate of change of velocity, right? But what is the next thing? yeah, This one. Are they equal? Sorry, my sure. bad. Are they equal? Mod of dv vector by dt is dv by dt. Is it equal? Are they equal? Yeah, I think so. हम्म? अरे, Not ऐसे कैसे? sure. नहीं नहीं, ऐसे I think कैसे? I think it is equal. नहीं नहीं, कैसे इक्वल हो जाएगा? dv by dt वेक्टर d वेक्टर by dt is what? It's v square by r minus er cap plus r plus dv by dt et cap. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, यस और नो? तो ये दिस इज एक्सीलरेशन ना, तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड हुआ ये. सो दिस इज एक्सीलरेशन, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, राइट? बट व्हाट इज दिस? Yeah. सो दे आर नॉट इक्वल. सो व्हाट इज दिस? dv by dt is what? सो इफ यू सी हियर, ध्यान से, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये तुमको जब आता है तो फिर दिक्कत होने लगती है, सवाल छोटे छोटे नहीं समझ में आते. आर डी ओमेगा बाई डी टी इज डीवी बाई डी, राइट?
दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये मैंने लिखवाया है तुमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, एंड दिस इज rate of change of velocity, rate of change of velocity. समझ आया? तो स्पीड में क्या था? दिस वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दिस वाज व्हाट, द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है ना, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ ये, समझे? तो dv वेक्टर बाय dt इज मैग्नीट, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सीलरेशन, एंड dv by dt is itself the magnitude of tangential acceleration. Tangential acceleration. Okay. I hope all of you understood this. Yes or no? हेलो, भाई Yes, समझ आया sir. नहीं आया? हाँ, तो ये पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, ठीक है? सो नाउ कम्स टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. लेट्स डिस्कस यूनिफॉर्म circular motion. Now, in uniform circular motion, what happens is omega is constant. In uniform circular motion, omega is constant. ठीक है? तो ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? ओमेगा इज गिवन एज, सॉरी, आर ओमेगा इज गिवन एज वी. तो ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो. यस और नो? डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो. तो द नेट एक्सेलरेशन जो था दैट वाज आर डी ओमेगा बाई डी टी ई टी कैप प्लस ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ई आर कैप. गॉट इट? हेलो? Yes, sir. Yes, तो sir. सिंस omega is constant and d omega by dt is equal to 0, we get acceleration a as omega square r minus er, or you can, in terms of v, you can write it as v square by r minus er cap. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. Right? So what is happening to the resultant acceleration? Vector a is directed towards the center of the circular path. Center of the circular path. Right? And hence we call it as, क्या बोलते हैं इसको? What do we call? Centripetal. Acceleration. We call it as centripetal acceleration. So when the net acceleration is directed towards the center of the circular path, we call it as centripetal acceleration. Right? And it happens only when the particle moves in uniform circular motion. Now, any acceleration is because of some force. So, since any acceleration is because of some force, in this case, mass into centripetal acceleration brings us centripetal force, right? So, what is centripetal force?
It is the net force directed towards the center of the circular path. It is the net force directed towards the center of the circular path is called as centripetal force. तो ये कोई अलग से फोर्स नहीं लग रहा है यार. It is not any different type of force. Got it? ये कोई अलग से फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ. जो भी नेट फोर्स है वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, वो लग रहा है. एंड दैट इज व्हाट इज वी कॉल एज centripetal force. I hope all of you understood this. Yes or no? Hello. Yes, sir. Hmm? Yes, sir. ठीक है. तो चलिए, तो यहां से हम कहानियां शुरू करते हैं. ठीक है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. एंड ऑलवेज रिमेंबर द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर. ठीक है. नोट करो बेटा इसको. If you have noted it, please type done in the comment below.
हाँ भाई। अरे लिख लिया कि नहीं लिखा? हेलो हेलो जनता। दिशिता, श्रीनिधि, Done, sir. डन ना? चलो वेरी गुड। सो नाउ श्रीवत्स, नोटेड और नॉट? सर सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन लिख रहा हूँ। लिखो 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 लिखो। दीव, नोट्स बना रहा है कि नहीं तू? Yes, sir. हम्म। देखो ये सब तुम लोगों ने पढ़ रखा है, पर मैं तुमसे कह रहा हूँ अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और यही साल है तुम्हारे पास। तुम एट्थ में हो, नाइन्थ में हो अभी? Sir, 9. नाइन्थ में है ना तू? अगले साल तेरे पास टाइम नहीं रहेगा 10वीं में, तेरे मतलब 10th अक्टूबर के बाद यू विल नॉट हैव टाइम। तो यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट फ्रॉम दिस 1 ईयर। इस पूरे साल में सिलेबस कंप्लीट होके इरोडो सॉल्व करना शुरू करना है। समझ आया? एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुकलेट पकड़ के खत्म कर देने का। भाई की बुकलेट रखी है कि नहीं तेरे पास? Yes, sir. हाँ, उसकी बुकलेट करना शुरू कर दे अब जो चैप्टर होगा तेरे। समझ रहा है? तो तेरे को फायदा हुआ ना बेटा। नहीं तो क्या फायदा टाइम बर्बाद करने का है? चला, हो गया भाई श्रीवत्स। डन सर। श्रीनिधि, दिशिता, नोटेड। कुशाग्र बैनर्जी, कुशाग्र बैनर्जी, होमवर्क वो तुम्हारा क्लास वर्क भेजना है तुमको। हम्म। चलो तो अब हम लोग बात करते हैं, आओ इधर, एग्जाम्पल्स की, हाउ टू अप्लाई दिस। ठीक है, हाउ टू अप्लाई दिस। देखो ये 3 ट्रैक्स हैं यहाँ पे। तो एक जो है वो, अबे यार, हटा साल। हम्म। तो एक ट्रैक है जिसमें ये ब्लॉक है, दूसरा ट्रैक ये कॉनकेव ट्रैक है, तीसरा ट्रैक ये फ्लैट ट्रैक। ठीक है। तीनों ही केस में ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे टॉप पे है, यहाँ पे टॉप में है, वेलोसिटी v है, मास m है। यहाँ पे बॉटम पे है, वेलोसिटी v है, मास m है। यहाँ पे वेलोसिटी v है, मास m। ठीक है। और यहाँ पे रेडियस इज r, ये सेंटर है। रेडियस इज r, दिस इज द सेंटर, रेडियस इज r। फ्लैट सरफेस का रेडियस क्या होता है श्रीवत्स? Sir, it does not have a radius. There's है? no center. Sir, technically no radius, so there's no क्या fixed. तुम पगला गए हो क्या जी? The मतलब center of our बताओ। center of तुम्हारे Earth होगा पास sir. तुम सब करप्ट लोग। श्रीनिधि, व्हाट इज रेडियस ऑफ फ्लैट सरफेस? Sir, radius from center of the earth. ये देखो, अरे स्पेस में है फ्लैट सरफेस, अब बताओ रेडियस ऑफ अर्थ। दीव लिखा। Yes, sir. क्या तुमको अलग से सवाल बोलें क्या? नहीं सर, इसका रेस तो इन्फिनिटी होगा ना। हाँ देखो ये बच्चा सच्चा है। बच्चा बोला सच्चा। अबे तुम, रेडियस ऑफ फ्लैट सरफेस इज इनफाइनाइट भाई। इनफाइनाइट चीज को तुम लोग कह रहे हो जीरो होता है, नहीं होता है? रेडियस ऑफ अर्थ, अरे when you keep on increasing the radius, क्या होगा? the object seems to be much more flatter, isn't it? देखो, अगर पढ़ा है कि नहीं, जितना छोटा सरफेस होगा उतना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होता चला।
ये देखो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना बड़ा होगा, आर कम होता गया कि नहीं होता गया? आर बढ़ रहा है कि नहीं, सॉरी, हेलो। यहाँ पे कर्वेचर देखो कितना ज्यादा है इसका, यहाँ पे कर्वेचर कम हुआ है, यहाँ पे कर्वेचर कम हुआ है, यहाँ पे और कर्वेचर उससे कम हुआ है, यहाँ पे उससे कम हुआ है। उतने ही पोर्शन का अगर देखोगे तो, यहाँ पे अगर इतने ही पोर्शन का देखोगे तो द कर्वेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, यस और नो? हेलो। Yes. Yes, sir. तो इनफाइनाइट होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फ्लैट सरफेस इज इनफाइनाइट, ठीक है, दिस इज इंफिनिटी। तो in all the cases you now know the value of velocity, radius of curvature, ठीक है। You have to find the force exerted by the track on the block, ठीक है। तो what will we do? तो पहला स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम। ऋषिता जी बताइए, फ्री बॉडी कैसे बनाएंगे, इसका क्या क्या बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम? सर mg नीचे लगेगा। ओके। There will be a normal acting upwards. ओके, बहुत बढ़िया बात है। और 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 कुछ नहीं बताओगे? और कोई फोर्स? sure. नॉट श्योर क्या होता है? तुमने कितने फोर्स पढ़ाए, मैंने तुम्हें बताओ। अच्छा चलो, mg पढ़ाया है, वो लगा दिया तुम। कांटेक्ट फोर्स में नॉर्मल रिएक्शन पढ़ाया है, वो लगा दिया तुमने। फ्रिक्शन है नहीं यहाँ पर, बोला नहीं मैंने। टेंशन दिख नहीं रहा है तुम्हें। देर इज नो नॉन इनर्शियल फ्रेम जहां से तुम इसको ऑब्जर्व कर रही हो। 5 फोर्स पढ़ाए हैं, है ना? पांचों फोर्स तुमने लगा के देख, जो लगना था वो लगा लिया। और कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा है। तो देर इज नो अदर फोर्स विच विल कम इन द फ्री बॉडी डायग्राम। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? कुशाग्र बैनर्जी, दीव लिखार, श्रीवत्स, दिशिता एंड श्रीनिधि, अंडरस्टूड और नॉट? Thank you. Yes. Yes, sir. है ना? नाउ टेल मी, दिशिता आप ही बताइए कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स? व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ? Mass into acceleration towards the center. नो 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 नो, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। अभी ये फ्री बॉडी डायग्राम देख के नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर बताइए क्या है? mg. फिर से, नेट फोर्स, तुम हो यहाँ पे, ये तुम हो, Oh, तुमको net नीचे force. mg से खींचा, n ऊपर खींचा, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना है? mg minus n. बस यही बोलना था। तो net force towards the center is mg minus, let's take this case as n a case, this case as b case, and this case as c case. So this is na, right? So this is equal, this is the centripetal force. Now what is the magnitude of centripetal force? It's mv square by r. All of you are aware about. So na is what? Na is mg minus mv square by r. I hope all of you understood this. Yes or no? Dev, Srinidhi, Srivats, Kushagra, Dishita, Yes, Yes, sir. sir. Yes, Sir. sir. है ना? तो डू द, ये लिखो इसको एंड सॉल्व इट फॉर बी एंड सी। डू इट क्विकली।
टाइम हो गया। टाइम हो गया। हो गया तुम्हारा दीव लिखा? नोट कर लिया तुमने? यस। सॉल्व भी कर लिया? दिशिता, श्रीनिधि, हम्म। श्रीवत्स, कुशाग्र, हम्म। शांभवी जी, यस सर। आप ऐसा लेट क्यों आ रही हैं? ये बताइए मुझे, कुछ प्रॉब्लम है क्या बेटा टाइमिंग को लेके तुमको? नहीं नहीं, वो आज लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं वैसे कोचिंग 9-10 पे घर है, उसके बाद हमें कल बाहर जाने तो इससे घर पे दिवाली की पूजा आनी थी तो उसमें टाइम चला गया। ओह, तो बेटा हाँ। तुमने पिछली बार का भी रिकॉर्डिंग तुम वेडनेसडे को भी नहीं देखा? तुमने वेडनेसडे को तुम आई थी क्या? वेडनेसडे के हाँ मैं आई थी वेडनेसडे को, वो पहले के 15 मिनट्स नहीं आई थी। वो रिकॉर्डिंग मेरे को मिलेगी क्या मतलब? तो ये पूछोगी ना तुम मुझसे। हाँ वो मैं वो पूछना भूल गई। चलो अच्छा, कैमरा ऑन करो, मैं तुम्हें बताऊंगा फिर। आज तुमको मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग, एक बार मुझे पिंग कर देना बस, ठीक है? तो मैं ओके अभी ओके। आई विल सेंड यू द लिंक्स। तो आज का अच्छा। भी देखना पड़ेगा बेटा, हाँ ठीक मैं है? आज कल तो करूँगी। तुम एक काम करो, तुम अब मत अटेंड करो क्योंकि आधे ही मैं कुछ पढ़ा चुका हूँ। तुमको आता है सर्कुलर मोशन? पढ़ा है तुमने पहले? नहीं वो स्कूल है उसमें कोचिंग करना अभी चल रहा है। हाँ, तो तुम इसको, मैं तुम अपना जाओ तैयारी वगैरह कर लो, है ना? मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेजूंगा, बट प्लीज रिकॉर्डिंग देख के तुम नोट्स बना ले। या हाँ तुम्हारी वो इच्छा, तो मैं मुझे कर कोई लूँगी। प्रॉब्लम नहीं है, 20 मिनट में तुम कुछ नहीं सीख पाओगी तो तुम उधर का भी काम खराब करोगी, इधर का भी। तो तुम हाँ आराम से जाओ, है ना? और मेरे तो को बस तुम पिंग कर देना, मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है? अच्छा, तो आप रिकॉर्डिंग क्लास के बाद भेजोगे फिर अभी भेज हाँ, सकते हो? क्लास के बाद भेजूंगा बेटा, अभी अच्छा नहीं भेज पाऊंगा, ठीक है। है ना? ओके ओके। ठीक है, हाँ तो जी। तुम आओ, जाओ, हैप्पी दिवाली, एंजॉय। बस। बाय बेटी। तो श्रीनिधि जी आइए जरा, कहाँ है आप? तो श्रीनिधि, what is the net force acting towards the center of the circular path in this case, second case? Sir, N minus mg is equal to mi. Nb minus mg is equal to, again the velocity is v, so mv square by r. So in this case Nb is mg plus mv square by r, right? Yes, sir. Mr. Srivats, where are you? Tell me Yes, the sir. free body diagram of this. So free body diagram में तो कुछ भी नहीं है, it's mg and nc. Now tell me what is the net force towards the center, Srivats? So it will be mv square by r is equal to mg ना minus ना बेटा, mc. फिर But गलत then, गलत 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 sir, गलत। but then r is एम वी, infinity. अबे फिर वही बात, एम वी स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल टू नहीं होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर। समझ आया? जो ये लोग लिखते हैं, जो जो लोग लिखते हैं ये एम ए इज इक्वल टू फोर्स एफ, ये जो लिखते हैं, या एम ए इज इक्वल टू एम जी प्लस वॉट एवर कोई फोर्स लग रहा है, ये लिखते हैं। भाई ये बेवकूफ लोग लिखते हैं, या आप नहीं लिख सकते हैं, ऐसे मूर्ख लोग लिखते हैं। समझ आ रहा है? अरे भाई, ये कॉज है और ये उसका इफेक्ट, ठीक है दोस्त श्रीवत्स? Yes, sir. तो ये एम वी स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल टू कुछ नहीं है यहाँ, कुछ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर। अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ So प्लीज, तो ये ध्यान, हाँ नाउ इन दिस केस mg टेल मी। minus mc is equal to mv वेरी square गुड, by r. वेरी गुड। नाउ Sir, आर इज इनफाइनाइट, सो it will be zero, sir. वेरी गुड, So खत्म, nc is equal to mg. वेरी गुड। देखो कितना बढ़िया है ये, क्लियर है ना अब? तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है? आओ जरा एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके दिखाओ मुझे, ये तो मैंने कर दिया था तुम्हारे लिए। सो वी हैव दीज थ्री केसेस हियर, 1, 2 and 3।
तो here the radius of the circle is L. This is a pendulum which is hanging from the point as, ठीक है, from the point of suspension as shown in the figure. So this is the bob of mass m. Okay, the length of the pendulum is L, mass of the pendulum is m. यहाँ पे ये v है, ये v है और ये v है. So at each of these instances, the speed of the bob is v. Okay. At each of these instances, the speed of the bob is v. यहाँ पे एंगल मालूम है तुम्हें, ये थीटा है. यहाँ पे तुमको समझ में आ गया, टॉप मोस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये सब तुमको दिखाई दे रहा है ना. You have to find the tension in all the three cases in the string. Find the tension in the string in all the three cases. ठीक है, करो. This is case A, this is case B, this is case C. सर हो गया. स्क्रीनशॉट भेज अपना मेरे उसमें व्हाट्सएप पे डीएम कर मुझे.
Done, sir. चलो ऑल ऑफ यू नोट डन। आ गया आंसर? चलो दीव लिखा, तुमसे शुरू करते हैं, आओ जरा इसका बताओ। फर्स्ट वाला ए। तो सर mv² by r ऊपर लगेगा। फिर अरे गधा, वो लगता नहीं है, वो फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ करेगा तुम। ठीक है, तो एक पहले नहीं, टेंशन ऊपर ठीक नहीं होगा। है, ठीक नहीं है ये, यही तो गलत था। ठीक क्या है बे? ठीक नहीं है बेटा, क्या लिखा है? ये नेट फोर्स होता है। नेट फोर्स को हम लेफ्ट में लिखते हैं, उसको इक्वेट करते हैं इस चीज से। समझ आया? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है तुमको ये? तो ये नहीं लगाना है mv² by r, ये लगता नहीं है। चला, अब बताओ। तो टेंशन ऊपर लगेगा, वेरी गुड, टेंशन ऊपर लगेगा। mg नीचे लगेगा। mg डाउनवर्ड्स लगेगा, वेरी गुड। t माइनस mg इज इक्वल टू mv² by r होगा। शाबाश, TA माइनस mg इज इक्वल टू mv² by r। तो सो फिर TA इज इक्वल टू mg प्लस mv²by r। हम्म, वेरी अब गुड। अब इस केस में टेंशन नीचे शायद लगेगा। थांबा थांबा चीता थांबा, बाकी लोग क्या अब यहाँ पॉपकॉर्न खाने बैठे हैं? श्रीनिधि जी बताइए, सेकंड केस। Yes, sir. So mg will be downwards. ओके, Tension also will be downwards. वेरी गुड। सो बोथ टेंशन एंड mg आर एक्टिंग डाउनवर्ड्स, देन So tension plus mg ओके, will be equal to mv²by r. वेरी गुड। हाँ, यहाँ तो मैं भूल ही गया था, एल था, सॉरी। तो दिस इज इक्वल टू mv²by l माइनस mg। व्हाट अबाउट दिस? कौन बताएगा मुझे, ये कहाँ है हमारी दिशिता, कहाँ है दिशिता? Yes, sir. चलो बताओ इसको। Sir, TC will obviously act upwards टुवर्ड्स द सेंटर, towards the center. along the string है ना ये, T, along the string towards the yes. center, yes, then We have to find the component of gravity along the string. So it would be mg cos theta. along the string and perpendicular to the string, दोनों साइड आएगा ना। Right. तो इधर वाले हाँ, से कोई मतलब नहीं है वैसे तो मुझे। सो दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज mg cos theta g theta. Right. and this is mg sin theta. So whenever you take the components, you have to show it neatly in the free body diagram. Now what Sir, now so what TC minus mg cos theta would be equal to mv square upon L. is equal to mv² upon l? Very good. So tc is equal to mg cos theta plus mv²by l. I hope all of you understood what is centripetal force. Say yes or no. Hmm? Yes, sir. Hmm. Shabash. Shrivats, you got all correct or no? Yes, sir, I got all of them correct. Hmm. Now it is यार, टाइम नहीं बचा है। चलो आज यहीं खत्म करेंगे हम लोग, एक्चुअली एक और क्लास है मेरी 10 बजे से। तो होमवर्क मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, होमवर्क प्लीज करिए, और होमवर्क भेजिए भी आप लोग, है ना। संडे को क्लास नहीं होगी, नो सेशन ऑन संडे, बट देयर विल बी सेशन ऑन नेक्स्ट वेंसडे। तो बाय देन प्लीज कंप्लीट दिस। ये सर्कुलर मोशन पढ़ो आप लोग इससे, ठीक है, पढ़ाया है मैंने आप लोगों को। डू ऑल द इन चैप्टर एक्सरसाइजेज ऑल्सो, राइट। ये इन चैप्टर जो है ये भी करना है आप लोगों को, ऑल दीज एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, ये जो है ना ये सब, इसका ये देखो ये सब लिख रखा है एग्जाम्पल 7.4 एंड ये मैंने आप लोग को पढ़ाया नहीं है। सर्कुलर टर्निंग्स एंड बैंकिंग ऑफ रोड, सर्कुलर टर्निंग्स यू कैन डू, बैंकिंग ऑफ रोड्स पता नहीं कर पाएंगे आप लोग कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। सो बट वॉट एवर,
तो क्वेश्चन नंबर 1 3 1 3 4 5 एग्जाम्पल्स में, राइट? 1 3 4 5 6 7 8 1 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. आफ्टर दिस, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइजेस में, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 23, you can leave banking questions if you find any in between. You can leave the banking questions, so no worries on that part. But please do try to complete as many as you can, and please send me so that I can send your attempts. So you have to send me by Tuesday late evening so that I can check it before your Wednesday class. Please complete it. ठीक है. When is your